اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. The manifestations of the stages of the blessing, the words of the wisdom, volume 9, حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روبے کا جی آج کی 6807 page 37. The Holy Quran is my spirit. کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہولی قرآن جو ہے قرآن پاک وہ ایک سپرٹ دیتا ہے، وہ ایک طاقت دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے. وہ لوگوں کو لیے جو ہے وہ ہر عضو کے لیے، خاص طور پہ دماغ کے لیے ایک جو ہے وہ روحانی طاقت کا باعث ہے، ایک طاقت کا باعث ہے، ایک جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے، ایک فضل کا باعث ہے. پروسٹریٹ اینڈ کم آؤٹ. جو بھی اس میں سے آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آتا جاتا ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمارے لیے ایسے ہے کہ جو ہم جیسے مرضی بہت سے جو ہے وہ ہم اس کے معنی جو ہے اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اس سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے جاتا ہے اور اس کو کلوں پہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دم درود کے لیے پڑھا جاتا ہے اور اس کے جو ہے اصل مفہوم جو ہے وہ نہیں سمجھتا کوئی بھی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے جو بھی آپ معنی سمجھ لیں، جس جگہ پہ بھی آپ لگا لیں، کبھی قبرستان پہ لوگ جا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اصل مقصد جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے 90% لوگ جانتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. کہ الحمد کا کیا مطلب ہے، درود پاک کا کیا مطلب ہے. کوئی بھی آپ آیت لے لیں، سورۃ کوثر کا کیا مطلب ہے، انا اعطیناک الکوثر کا کیا مطلب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب کا کیا مطلب ہے. 90% لوگ جانتے ہی نہیں. ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ثواب کے لیے کو پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گناہ کے لیے پڑھ رہا ہے. گناہ کے لیے نعوذ باللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے معنی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ، یہ جو ہے یہ بہت غلط باتیں ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کم آؤٹ، جو بھی اس کا مطلب آپ لینا چاہیں اس سے لے سکتے ہیں. واٹ ایور کم ان یور وے اٹ از ناٹ یور. جو بھی جو ہے آپ کے راستے میں آتا ہے یہ تمہارا نہیں ہے. اصل میں اسپرچل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جتنی بھی جو ہو آپ کی روحانی ٹریٹمنٹ ہو تو پھر آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. تھرو اٹ اوے اوپنلی، اس کو جو ہے وہ پھینک دیں، ایسی چیزوں کو جو آپ کو غلط راستے پہ لے کے جاتی ہیں ان کے راستے پہ نہ چلیں. کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم، صحیح سپرٹ کو سمجھیں. اصل میں یہ راہ حق ہے، راہ عمل ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو باقی جو ہے اس کو تھرو آؤٹ کر دیں. یعنی کہ اس کو جو بھی باقی باتیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ گمراہ کر رہی ہیں، جس کو جو ہے وہ آپ نہیں سمجھتے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شراب کے قریب مت جاؤ. اب آپ اتنا سن کے جو ہے ایک لفظ لے لیتے ہیں کہ شراب کے قریب مت جاؤ.
یا نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، اتنا پڑھ کے جو ہے آپ بس کر دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھرو اٹ آؤٹ کر دو. جب تم نشے کے حالت میں ہو، یہ ہے پورا لفظ. تو اس وقت جو ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت جائیے، کبھی بھی جو ہے نماز کے قریب مت جاؤ. پورا لفظ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کو اوپنلی لیں. تھرو اٹ اوے، اوپنلی ایسی چیزوں کو جو ہے وہ نکال دے جو کہ فرقہ واریت پیدا کرتی ہے، جو نقصان پہنچاتی ہیں. اور اصل بات جو ہے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے ایسی چیزوں کو ختم کر دے، اور اصل حقیقت کو، راہ عمل کو، راہ نجات کو، اور جو ہے وہ اصل چیزوں کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے پھر، اینڈ ایٹ دی ڈرم بیٹ، اور اصل چیزوں کا جو ہے وہ ڈرم بیٹ پہ آپ نے جو ہے وہ اعلان کر دینا ہے. جہاد کا اعلان ہے، زکوٰۃ کا اعلان ہے، روزے کا اعلان ہے، آپ جو ہے یہ ساری چیزوں کا اعلان ہے، سیدھے راستے کا اعلان ہے، تاکلون کا اعلان ہے، تشکرون کا اعلان ہے. یہ سارے آپ نے جو ہے ڈرم بیٹ پہ اعلان کر دینے ہیں، گھبرانا نہیں اس میں. اور جو فرقہ وارانہ بات ہے، جو فضول باتیں ہیں، ان پہ آپ نے غور نہیں کرنا، اصل حقیقت کو سمجھنا ہے. طاقوں میں نہیں سجانا، اس کو پڑھ پڑھ کے نہیں پھونکنا. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاں جی، تو طاقوں میں نہیں سجانا، یہ اس کو کور نہیں کرنا. یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے. آگے جس کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے. My master prefers communal food most of the perfumery، کہ میرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ ہمیشہ ایسے لقمے کو، ایسی خوراک کو جو ترجیح دیتے تھے، ہمیشہ جو ایسی خوراک کو تعین کرتے تھے جو کہ واقعی جو ہے وہ ہوتی تھی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی مفید ہونے کے لیے. تو اس میں جو ہے یہ اور آپ اس بات کا جو ہے how it all the ones who hidden it، اس میں جو بات چھپی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 3-4 اس کے مفہوم ہے. ایک واقعہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینہ منورہ کا واقعہ، اس کے اندر جو ہے وہ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں سے بھوکے تھے، پیاسے تھے. وہ نبی پہلے حضرت عمر کے ساتھ چلے گھر میں کہ شاید مجھے دعوت دیں، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے، اور اس کے بعد ایک پیالہ آ گیا. وہاں پہ جو ہے جو لوگ مطلب جو ہے ایک پیالہ ایک صحابی لے کے آیا آپ کے پاس، دودھ کا ایک پیالہ تھا. تو آپ نے جو ہے ابو ہریرہ سے کہا کہ بھئی جتنے بھی جو ہے لوگ یہاں پر پڑھنے والے لوگ جو ہے، جو دارالارقم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سب کو لے آؤ، جو مطلب جو ہے طلبات ہیں ان کو لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کے دل میں بات آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیالہ ایک ہے، مجھے میں ہی نہیں شیر ہوں گا، باقی لوگوں کو کیا، اتنے لوگ ہیں، اتنے جو ہے طالب علم ہے، تو یہ کیسے کام چلے گا. تو آپ نے اس کے اوپر کپڑا دیا اور اپنا دست شفقت پھیرا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہر بندے کو جو ہے یہ دو. تو سب نے سیر ہو کے پیا. فوڈ ایسا تھا، ایسا دودھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شفاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا. تو سب نے پیا، سارے صحابہ نے پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی اجازت دی کہ پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا دودھ جو ہے وہ خوب سیر ہو کے پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. تو ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اب گنجائش نہیں ہے.
تو اس کے بعد آپ نے پیا تو آپ نے جو ہے اسپینڈ کر دیا. تو اس طرح کا فوڈ جو ہے یہ اس طرح کے فوڈ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ نہیں جانتے یہ حکمتیں ہیں سارے, یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں کہ جس چیز میں مجھے ایک چھوٹی سی چیز کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. تو آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے نہیں جان سکتے. اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے جو ہے وہ روحانیت اسپرٹ کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی اثر روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اس کے ترجمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے جو ہے وہ مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیک واٹ یو وش, جو تم چاہتے ہو لے لو, جو تم چاہتے ہو لے لو. آئی ڈو ناٹ نیڈ them, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ ون ٹو, جو ایک اور دوسرا ہوتا ہے. whoever told, اس طریقہ سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز کو جو ہے نہ اپناؤ. on this way, on this path, کہ ایسی چیزوں کو مت اپناؤ. the path of the censor, جس کو جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ حرام اور حلال حرام قرار دیا گیا ہے, سینسر کیا گیا, اس کو ممنوع قرار دیا ہے. جیسے شراب ہے حرام چیز ہے, مردہ جانور ہے, ایسے بہت سے جانور ہیں جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, سور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام قرار دی گئی ہے. آپ کو جو سینسر کر دیا گیا ان کے اوپر, آپ کو اوپر جو سینسر کی مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ آپ نے نہیں لینی. باقی ہزاروں چیزیں ایسی ہیں, ہزاروں فروٹ ایسے ہیں, ہزاروں جو ہے وہ نعمتیں ایسی ہیں, جو مرضی آپ لیں, آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. سینسر فری فرام سیلف اسٹیم, اور باقی چیزیں سب آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ آپ کی عزت نفس کو میں اضافہ کرتی ہے. تو جن سے منع فرمایا ان کو جو ہے وہ آپ کبھی بھی نہ لیں. ڈو ناٹ on this path repeat whatever did treat. تو اس طریقہ سے جو بھی چیزیں جو ہے وہ ایسی چیزوں کو اختیار کریں جو آپ کے جو ہے وہ ضروری ہے. ڈڈ سے سم انڈسکریمنیٹلی, اندھا دھن ہی کوئی کام نہ کرتے جائیں, اندھا دھن ہی چیزیں نہ لیتے جائیں, بلکہ جو ہے ہر چیز کو جو ہے وہ پہلے سوچیں کہ یہ جو ہے یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے, اور اس کے بعد ان چیزوں کو لیں. اور do not take anything too hard, جو تمہارے دل کو پسند نہ ہو ان کو نہ لیں. ایسی چیزوں کو مت لیں جو چیزوں دل کو آپ کو پسند نہ ہو. drag along everything to the field, اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ زمین کے اندر مت بوئیں جو کہ ضروری نہیں ہے, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہر چیز میں جو ہے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. سیو یور ڈٹرمینیشن, اپنے یقین کو جو ہے پختہ کر لیں, اپنے یقین کو پختہ کر لیں. اینڈ پٹ ایوری تھنگ ایلس ٹو اے اسٹاک, کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. ذخیرہ اندوزی اسلام میں جو ہے وہ بہت زیادہ منع ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے جو ہے وہ قحط کا شکار ہو جاتے ہیں. جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں, اس لیے ذخیرہ اندوزی سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے. لیٹ اٹ لوٹڈ, ان چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر دو, لوٹ کر دو, ان کو دے دو. جب بھی جو ہے مال غنیمت آتا تھا تو اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے, ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. بٹ ڈو ناٹ کیئر اے فگ فار اٹ, اس کے لیے جو ہے وہ ذرا سی بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی فگ کا جو ہے وہ ایک بیج کا بھی آپ جو ہے وہ ذمہ داری نہ لیں, ایک بیج بھی اپنے پاس نہ رکھیں. یہاں تک ممنوع ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ
मुकम्मल तौर पे ममनू है। एक फिग का जो है वो एक बीज भी आप अपने पास ना रखें। फिग एक प्लांट है, बड़ा प्यारा प्लांट है, उसके ऊपर जो है बड़ी प्यारी सी जो वो चीजें लगती हैं। तो ये कब्ज कुशा है और बड़ा जो है वो इसका उर्दू नाम मेरे जेहन से अभी निकला है। तो ये आम तौर पे जो है ये पंसारी को दुकान से मिल जाती है। फिग जो है ये इसको हम दबा लेते हैं, अंजीर इसको कहते हैं। हाँ जी। तो अंजीर जो है ये जो है इसके अंदर जो बीज होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो एक बीज भी जो है वो आप जो है वो ना रखें। बट डू नॉट केयर ए फिग फॉर इट, एक उसका जो बीज की भी जो है वो केयर ना करे, उसकी भी हिफाजत ना करे, बल्कि सब कुछ तकसीम कर दे, लुटा दे सब कुछ। ये दुनिया का माल है, दुनिया पे रह जाना है, आखिरत में जो है वो आपके काम आना है। तो इस तरीका से जो है हमेशा जो है ये इस तरीका से जो है वो करें। इफ डिटर्मिनेशन इज अलाइव, अगर आपका यकीन तयन की हुई बातें, आप जो डिटर्मिनेशन आपका यकीन पुख्ता है, आपके तयन की हुई बातें जो है वो पुख्ता है, आपका जो है वो तयन क्या है, अल्लाह ताला पे भरोसा अगर पुख्ता है तो फिर क्या है जी, आगे देखते हैं जी। जिंदा है आपका यकीन तो एवरीथिंग इज अलाइव, तो तमाम चीजें जो है वो जिंदा है। अगर आपका डिटर्मिनेशन जिंदा है, यानी कि आपका यकीन जो है वो पुख्ता है, आपके तयन की हुई बात जो है वो पुख्ता है, तो फिर आप जो है वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। तो यही बातें जो है वो हमारे जो है वो हकीम साहब की बातें हैं। तो हकीम अजमल साहब की थोड़ी सी बातें और करने से पहले, बच्चा गिली मिट्टी जैसा होता है। बड़ी प्यारी बात है जी, बच्चा गिली मिट्टी जैसा होता है। हम इससे जैसा सलूक करेंगे वैसा किरदार अपनाएगा। कि बच्चा जो है वो गीली मिट्टी जैसा जो होता है कि उससे हम जो मर्जी बना ले, कोई बर्तन बना ले, सराही बना ले, गीली मिट्टी से जो गिलास बना ले, उससे जो है ये गमला बना ले, कोई चीज आप उससे बना ले, गीली मिट्टी जैसा होता है। तो उसके किरदार के अंदर तब्दीली आपने लानी है, उसको प्यार आपने करना है। तो ये भी जो है ये बड़ा जबरदस्त बात है। उसके यकीन का तयन जो है वो आपने करा, उसकी मंजिल का तयन आपने करवाना है। तो ये वालिदैन का फर्ज है। तो कुरान पाक के ऊपर अमल करने से हम जो है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हकीम साहब की थोड़ी सी बात, हकीम अजमल साहब की, इसको जो है वो ब्याज अजमल से हम थोड़ा सा जो है इस्तेफादा करेंगे। और आज जो है वो हकीम साहब की थोड़ी सी बातें हकीम अजमल आजम की तो शादात इनके थोड़े से बात करने के बाद जो है हम आगे चलेंगे नब्ज के मुतल्लिक। जो हकीम साहब की बातें, ये नब्ज के मुतल्लिक जो है शादात, नब्ज शनासी तिब्बा का कदीम पेशा है। इसमें से जो है वो नब्ज के बारे में हकीम साहब फरमाते हैं कि नब्ज सारी चीज़ों का बात नहीं बताता। डॉक्टरों के पास सिर्फ ये है कि वो जो है वो रंगीन कहता है कि सिर्फ दिल की धड़कन बताता है, लेकिन हकीम जो कहता है कि वो जो है वो खाने का वक्त तक तय्यन कर देता है। लेकिन किसी को नब्ज देखनी आती हो तो फिर है। इस तरीके से जो है वो नब्ज हर मालिज का जो है वो अपने अपने तजर्बे के मुताबिक जो है वो देखता है, और अमराज की नवीयत के मुताबिक जो है नब्ज से जो है वो शनाख्त करता है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो नब्ज की शनाख्त का निसार मशक और तजर्बा पर होता है। कि हर मरीज, हर जो है वो हकीम, हर तबीब का जो है वो अपनी मशक और तजर्बा के मुताबिक जो है वो मरीज का जो है वो तशखीस कर सकता है। तो इसमें जो है कुछ नब्जों के बारे में हकीम साहब ने जो है बयान किया है जी। अगर नब्ज जो है वो मतमली, अजीम और सरी हो, तो इसका तमस्हार हो, तो इसमें जो है वो नस्फुल दम सलालुल खून पर दलालत करता है। यानी कि अगर नब्ज जो है वो ज़्यादा बड़ी हुई हो, तो इसका मतलब यह है कि इसको खून जो है वो जारी है, किसी जगह पे जो है वो खून जारी है। तो नब्ज का मुआयना जो है वो दिमागी फालिज से भी किया जा सकता है। जब शरियान दिमाग फट जाने के बाद जो है वो जरियान खून जारी हो कर फालिज हो जाए, तो यही नब्ज जो है वहां पे भी होती है। तो इसके अलावा जो है आशिक में भी जो है वो इसी किस्म की नब्ज होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है वो आशिक खून में शामिल हो जाए तो जहर जो है वो हड्डियों पर सराब कर जाता है। तो जब मर्द पुराना हो जाए तो नब्ज नहीं रहती। तो हकीम अजमल आजम रहमतुल्लाह ने एक मरीज में जो है वो खास किस्म की नब्ज का मुआयना जो है वो किया, जिसमें जो है वो
दिल के इख्तलाजी हरकत पर दलालत करती है। नब्ज़ जो है वो मतमली हायल बाज़म हो, सीरियल लाइन और क्लियरेंस मुशर्रफ हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है दिल की जो है वो धड़कन को जो है वो अज़ाफ़ी तौर पर जो है वो बयान करती है। इसी तरीके से जो है वो अगर नब्ज़ जो है वो शरी ज़ईफ़ और मुशर्रफ हो तो ये मादा मनविया की दिक्कत पर जो है वो दलालत करती है। अगर नब्ज़ जो है वो अगर बदन में किल्लत दम हो तो नब्ज़ अज़म की तरफ माइल होती है और कसरत रज़ा पर दलालत करती है, रिया पर दलालत करती है। ये नब्ज़ ज़्यादातर बूढ़ों में देखी जाती है, नज़दीक अधेड़ उम्र में भी जो है वो पाई जाती है। बवासीर में जो है ये नब्ज़ जो है इस तरह की होती है। अगर नब्ज़ जो है सरी लैन और जो है ज़ईफ़ हो तो ज़ईफ़त दिमाग पर दलालत करती है। इसमें हज़यान के दौरान सर ज़ईफ़ डब्बी ले, हाँ जी, आगे डब्बी कर लीजिए, दाने डाले इसमें आगे डब्बी कर लीजिए। तो इस तरीके से ये दलालत करती है जी। नब्ज़ मतमली सरी माइल बाज़म अमल पर दलालत करती है और इसी तरीके से जो है मसलों का जिसमें जिस तरफ का फेफड़ा खराब हो इसकी नब्ज़ बनिस्बत जो है वो जहत मुखालफ मुशर्रफ होती है। तो सदा मुजमिन की नब्ज़ जो है वो अक्सर ज़ईफ़ सरी और लैन होती है। ये हकीम साहब ने इनकी नब्ज़ों के बारे में जो है ये बयान किया है। तो इस तरीका से जो है इस तरीका से असूल तशख़ीस और तजवीज़ के बारे में जो है वो हकीम अजमल आज़म की हदायत ये है एक बार इलाज के सिलसिले में हदायत देते हुए फरमाया कि मुआलिज सबसे कबल बीमारियों के मुतल्लिक़ ये मालूम करना चाहिए कौन कौन सी बीमारियां अच्छी होने वाली हैं और कौन कौन सी बीमारियां जो है वो लाइलाज है। इस तरह की सभी बीमारियां जो है वो आप ट्रीट नहीं कर सकते और उससे मुकम्मल तौर पर जो है वो शफा नहीं दे सकते। जैसे कि सिल का इलाज बहुत लंबा है तो ये इलाज लाइलाज नहीं है, लेकिन मरीज को पहले बता देना चाहिए कि आपका इतना खर्चा आएगा और इतने ज़्यादा जो है आपके जो है वो टाइम लगेगा। इस तरीके से जो है मरीज मुतमिन हो जाएगा और आपसे जो है वो दवाई जो है वो मुसलसल लेता रहेगा। बीमारियां किस तरह से पैदा होती हैं? तमाम बीमारियां जो है वो किन अज़ा की साखत के खराब होने से और अफ़ाल की खराबी की वजह से होती हैं। बाज़ खराबियाँ आर्जी और गैर मुस्तकिल होती हैं और बाज़ खराबियाँ जो है मुस्तकिल होती हैं। मसलन सूए मजाज को ले लीजिए। अव्वल तो खुद तबीयत जो है मुदब्बरा बदरे इंसान जो है वो इनको ज़ाहिल करने की कोशिश करती है। पेट को सर्दी लगी हो तो इसकी वजह से अज़ा मुतासर हो तो हज़म खराब हो जाता है। इसी तरीके से सूए मजाज बारद हो जाता है या हार हो जाता है, ये आर्जी होता है। ये कैफियत जो है इसमें तब्दीली आकर ये खुद ब खुद जो है वो ज़ाहिल हो जाता है। बाज़ खराबियाँ मुस्तकिल और मुस्तकम होती हैं, बआसानी से दूर नहीं होती। अगर मर्ज़ अज़ा शरीफा को लाहिक हो जाए तो ये मुस्तकम होता है और बआसानी ज़ाहिल नहीं होता। अलबत्ता मर्ज़ अज़ा गैर ऐसा को हो तो ज़ाहिल हो सकता है। अमराज का औलाद में मुंतकिल होना इस अमर का सबूत है कि ये जिस्म से जो है जब मर्द और औरत मिलते हैं तो आपस में जो है जदीद साइंसी तहकीकात ने इस पर जो है बहुत ज़्यादा सर्च करके जो है वो आला मुदारत के बावजूद जो है वो ये विरासती अमराज को जो है वो साबित किया है। अक्सरी दवा वो है जो जैसे कि मेमार जो है वो ईंटों से जो है वो अपनी मंजिल को बनाता है या मकान को बनाता है, इसी तरीके से एक मालिक जो है वो आला दर्जे की दवा देकर मर्ज को के साथ जो है
मुवाफ़क़त पैदा करके जो है मर्ज को दूर करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। गर्ज के शिद्दत और कुव्वत के लिहाज से अगर दवाओं के दर्जात मुकर्रर किए जाए तो इसी तरीक़ा से अमराज के भी जो है वो दर्जात जो है वो मुकर्रर किए जाए, ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ जो भी मर्ज हो उसी लिहाज से उसको तेज या कम दवाई जो है वो दी जाए। एक मरीज आपके मतलब में आता है, खुशक खांसी में मुब्तला है, प्यास की ज्यादती है, चेहरा जर्द है, बहुत देर तक खांसने के बाद थोड़ी सी बलगम खारिज होती है। ऐसे मरीज को अगर आप संतरा देंगे तो बहुत जल्द फायदा हो जाएगा और यही दवा इसके लिए अक्सीर होगी। मज़कूरा अक्सीरी दवाओं के अलावा दवाएं अक्सीर आम होती हैं जो काया पलट कहलाती हैं। अगर इस किस्म की दवाएं अज़ाए हज़म और नीज दूसरे अज़ा को खास कैफियत पैदा करती हैं जिससे जिस्म में इनकलाब पैदा होता है। मसलन दवाएं इस किस्म की खाने से सफ़ेद बाल सफ़ेद स्याह हो जाते हैं। इस किस्म की दवाओं को अव्वल तो खून पर असरअंदाज होती है और बाद में जाकर जो है वो एक खास किस्म का तगैर पैदा करती है। मसलन जैसे कि मलूकी को बराबर 1 साल तक इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल जो है वो स्याह हो जाते हैं और इसी तरीके से सफ़ेद बाल स्याह हो जाते हैं जो कि अरसा तक जो है वो स्याह रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है वो असल हालत पर वापस लौट आएंगे। तो ये इस तरीके से हकीम साहब ने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तजर्बात किए। इनके मतलब और मुआलजात की जितनी भी किताबें हैं, इनके ब्याज जो है वो ब्याज अजमली की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो है तबीब हाज़िर इनकी बहुत प्यारी किताब है जो मेरे पास मौजूद है और उसकी हज़ारों किताबें और रसाइल मेरे पास जो है हकीम साहब का मौजूद है। ख़ास तौर पे जो अजमल दवाखाना की जितनी भी दवाएं हैं और अजमल दवाखाना का जो पम्फलेट है जिसकी खसूसियात लिखी हुई है, उसमें बड़ा एक प्यारा सा नुस्खा लिखा हुआ है जो 20 अमराज पे जो है वो काम करता है। जुशांदा बना के मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर दोस्त कहेंगे तो मैं उनको जो है वो नुस्खा भी जो है वो उनकी जो फिस्ट अद्वियात के शुरू में जो है वो नुस्खा जो है तहरीर किया गया है, तो अगर दोस्तों को कर सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाइयों का। मालिज की याद रखने की कुछ बातें जो है ये हकीम साहब की जो है ये हकीम साहब के बहुत से मार्के जो है इनके बारे में हम मजीद जो है बात करेंगे। तो मालिज की कुछ जो है ये बातें वो आज थोड़ा सा डिस्कस करके जो है वाइंड अप करते हैं, नमाज का टाइम होने वाला है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है तमाम अमराज के जो है वो मालिज को नाम याद होने चाहिए, जैसे कि जो है वो रिही मिदा, तो जो है अपने अल्फाज में जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है फरमाते थे कि हमेशा अपने अल्फाज में, मैंने कभी बुखार नहीं लिखा, हमेशा हुमा लिखता हूँ। जो भी हुमा यौमिया लिखता हूँ, हुमा तफूजिया लिखता हूँ, हुमा तफूदिया लिखता हूँ, जो भी हुआ हो उसके मुताबिक उसको लिखता हूँ। जातुर रब जम लिखता हूँ, कभी नमूनिया नहीं लिखा। तो जो भी उसका मर्ज हो तो उसके मुताबिक जो है वो अपनी जो है उस मर्ज का नाम जो है वो अपनी जबान में हम लिखते हैं, कभी भी जो है वो फरंगियों की जबान में नहीं लिखते। ये हमारी तशखीस अपनी है, हमारा इलाज अपना है, हमारी जो है वो जबान अपनी है और इसी तरीके से हमारा तमाम चीज़ अपनी है। हम जो है वो मुकम्मल तिब के ऊपर जो है मुकम्मल अबूर रखते हैं। हमारा अपना कल्चर है, एक हकीम का अपना कल्चर है। ये हम फरंगियों जैसे लिबास नहीं पहनते, ना ही उन जैसे जो है ये दवाइयाँ देते हैं। हमारा अपना ही स्टाइल है। हम जो हम लठी दे के गले को ठीक कर देते हैं तो वो कहाँ जाते हैं उनकी जो है वो बैक्टीरिया, वो कहाँ मर जाते हैं जब हमारे जुशांदा उस पर काम कर जाता है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, जब लोकस पिस्ता से मरीज ठीक हो रहा है तो कहाँ जाते हैं उनके बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया जो है उनकी बात करते हैं। जब लोकस पिस्ता से नजरा ठीक हो रहा है, जुशांदे से हमारा नजरा ठीक हो रहा है, तो बैक्टीरिया कहाँ का है भाई? अल्लाह ही वापस है बैक्टीरिया का। तो नॉर्मल बैक्टीरिया का तो हम समझते हैं, मर्ज पैदा करने वाले बैक्टीरिया कहाँ चले गए भाई?
उनको जो है वो किल करके वो क्या करते हैं, किल करके कहाँ पे उनको जमा कर लेते हैं, हमारे जिस्म में अंदर स्टोर कर लेते हैं। हमारी समझ से ये बातें जो है ये उनकी जो है वो फिलॉसफी बाहर है। अंग्रेजों की फिलॉसफी आज तक मुझे नहीं समझ आई, हालांकि मैंने बी फार्मेसी की है, वहां पे भी मुझे जो है ये समझ नहीं आई, तो ना ही आएगी। मुझे जो है वो मुकम्मल जो है वो अपने टिप पे अमूर है और मुझे इस पर फख्र भी है। तो अमराज की अलामत तो हम भी जानना चाहिए, सिम्टम ऑफ द डिजीज को भी जानना चाहिए, इस तरह से दुआओं के अफाल व ख्वास को जानना चाहिए और असूल इलाज को जानना चाहिए। ये हकीम साहब की जो है, हकीम अजमल आजम खान रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो खास चीज़ें जो है वो मैंने बयान की है। तो अजमल दवाखाना लाहौर में भी है, इसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हकीम सवैदा साहब जो थे फैसलाबाद के अंदर, बड़े गुलाम नबी सवैदा साहब वो बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे, अल्लाह उनको जो है के रहमत के अंदर जगह अता फरमाए। यहाँ पे जो उनकी अमीपुर बाजार में जो है उनके दवाखाना पे मुलाकात होती थी, तो अक्सर जो है वो गपशप भी लगती थी। मेरे पास इन्होंने जो है वो इम्तहान दिया था फाजिल गुजरात का, अल्लाह उनकी जो है वो नहीं उनको जो है मंजूर रहा कि ज़्यादा जो है वो आपके खानदान से बिलोंग करते थे, वो आपके पोतों में शामिल थे या दोतों में शामिल थे, ये मुझे पूरा नहीं पता है। तो इसलिए जो है ये अब वो दवाखाना ही खत्म हो गया। तो फैसलाबाद के अंदर जो है अभी कोई इतना बड़ा दवाखाना हकीम अजमल के नाम से नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि चले हकीम अजमल साहब के नाम से जो है फैसलाबाद के अंदर एक दवाखाना जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक अहमद साहब उनके जो है ये सेलमैन है या सेल मैनेजर है, वो मेरे जानने वाले बड़े अच्छे तरीके से रजाबाद के अंदर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी इसकी, जो है वो कम से कम जो है वो 10 लाख रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा, तो फिर आप आपको दवा खाने की डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे आपको जो है उसकी ब्रांच बना के दे सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये मेरे ग्रेजुएट्स भाइयों के लिए या हमारे फादर के गुजरात के लिए जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फैसलाबाद के अंदर जो है ये हकीम अजमल खान साहब का जो है दवाखाना नहीं है, तो इसकी कमी है। और यहाँ पे जो है अमीपुर बाजार में और ये चिल्लोड़ बाजार में हमारे हकीम साहब बैठा करते थे। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम जैदी साहब बड़े दवाखाना पे बैठा करते थे, तो अल्लाह उनको बरके रहमत के अंदर जगह अता फरमाए। तो इस तरीके से जो है हमारे जितने भी बड़े बड़े दवाखाने, जैसे लाहौर में जो है करशी वालों ने जो है बहुत सी ब्रांचें बनाई हुई है, इसी तरीके से फैसलाबाद के अंदर भी करशी अजमल की जो है वो ये ब्रांचें होनी चाहिए। और जो है शहर के अंदर भी जो है वो हकीम अशरफ साहब की मतलब जो है एक ही मतलब, वो मतलब नहीं है सही तरह से जो है हकीम मोहम्मद अशरफ साहब का मतलब है, पहले जो है वो एक और साहब चलाया करते थे। तो कोठी के अंदर जो है हकीम जो है वो यहाँ पे जिला पुणे में ये टीवी बोर्ड बैठा करता था बड़ा, वहां पे मैं भी मेंबर रहा हूँ, हकीम फरीद भट्ट साहब और हकीम मंसूर अजीज साहब, ये सारे हम जो है ये वहाँ पे काम करते रहे हैं। तो अब जो है वो थोड़ा सा जो है कि सवाल है थोड़ा सा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा इसी तरीके से हम जो है ये ऐसा ही मतलब जो है ये मतलब फैसलाबाद के अंदर जो है कोई भी स्टैंडर्ड का स्वाय जो है, ये एक लड़का मेरा स्टूडेंट है अजीज, मेरा ख्याल नाम उसका मनान का भाई, तो उसने जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मतलब बनाया हुआ है, बाकी जो है वो ऐसे ही सारे मतलब है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं तो वो जो है कोई अच्छा सा मतलब जो है फैसलाबाद के अंदर लॉन्च करें। तो मैं भी रिटायरमेंट के बाद अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर साहब का और मेरे भाइयों का और मेरे दोस्तों का।